means business is different and owner is different. Business for accounting is different and owner is different. When owner gives money to business, when owner invests money into the business, it is called as capital. Business says it, we received capital, owner says I gave you capital. So when owner invests money into the business, that is a capital. And on the contrary, when owner takes money, right, when owner takes money for his personal use, that is called as drawings. So let me check, मैंने उसके बारे में लिख के दिया था क्या? हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट देखे थे, देन ट्रांजैक्शन देखे, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, फिर हमने देखा कि देयर आर कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, देन गुड्स देखे, असेट्स देखे. अच्छा ठीक है. So I think I didn't talk about capital and drawings. Please confirm whether I talked about capital or drawings in the previous two lectures. Please. मतलब अभी जो मैंने एक दो दिन में बेसिक लेक्चर्स लिए लास्ट वीक में, did I talk about capital and drawings? Yes or no? Please, you have to type yes or no. Let me ask you. No, okay, लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं. So yeah. So so what do you mean by capital? ठीक है, कैपिटल लिख लेना, कैपिटल. ठीक है, कैपिटल इज, दिस इज बिजनेस, दिस इज ओनर. कैपिटल एंड ड्राइंग समझेंगे, कैपिटल एंड ड्राइंग समझेंगे, ठीक है, बोथ. When owner invest money into business, when owner invest money into business, that is called as capital. When owner invest money into business, that is called as capital, right? And when owner withdraws money from business for his personal use, that is called as drawings. To start the business, owner has to introduce some cash, some assets. Owner अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कुछ ना कुछ लेके आएगा बिजनेस में, उसको बोला जाता है कैपिटल. एंड वो बिजनेस के खुद के यूज के लिए भी पैसा निकालता है, उसको बोला जाता है ड्राइंग्स. सो कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर अपोजिट. एग्जांपल, ओनर started business with cash, some amount of cash. He gave his vehicle, he gave some goods, furniture, computers, maybe office, etc. Right? Owner started business with cash, vehicle, goods, furniture, computer, etc. from his personal
source, right? From his personal source. From his personal assets. उसने बिजनेस करने के लिए उसके पास जो कैश थी वो बिजनेस को दे दी, उसके पास जो व्हीकल थी वो बिजनेस को दे दी, फर्नीचर था उसके पास वो बिजनेस को दे दिया, कंप्यूटर ऑफिस अगर कुछ रहेगा जो खुद का रहेगा, बट नाउ ही इज गिविंग इट टू द बिजनेस सो दैट दे कैन डू द बिजनेस. That is called as capital. Owner's investment into business. Capital is owner's investment into business. Into business. आपने सुना होगा कि धीरूभाई अंबानी started business with some ₹1,000. He started with business with some ₹100, and now it is a one of the leading company in India. So जो जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है ना, वो खुद होके जो बिजनेस में डालता है, खुद के जेब में से जो बिजनेस में डालता है, उसको बोलते हैं कैपिटल. एंड ड्रॉइंग्स इज एग्जैक्टली अपोजिट, राइट? ड्रॉइंग्स इज amount withdrawn by owner for personal use. For personal use. Owner withdraws money from business for his personal use. That is called as drawings. So owner जो बिजनेस को देगा, बिजनेस बोलेगा कैपिटल रिसीव्ड, एंड ओनर जो बिजनेस से निकाल लेगा उसको बोलेगा ड्रॉइंग्स. सो दैट इज राइट, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. अभी तक हमने क्या क्या देखा इसका मतलब. फर्स्ट, what do you mean by transactions? They are the dealings between the two persons, buyer and seller, which results in exchange of goods and services for money or money's worth. Exchange of money में like goods and services जो exchange होते हैं for money is a transaction. फिर हमने दो types के transaction देखे. There are cash transactions, there are credit transactions. Cash transaction में settlement is at the same point of time. Settlement is at the same point of time. Those transactions are called as cash transactions. When the settlement is done at the same point of time, you enter into transaction, you sold the goods, you received the cash, you purchased the goods, you paid the cash. ठीक है? So that is a cash transaction. Settlement at the same point of time. Credit transactions are the transactions, try to understand. Credit transactions are the transactions in which सेटलमेंट इज पोस्टपोन. सेटलमेंट आप पोस्टपोन करते हो फ्यूचर पे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेटलमेंट इज पोस्टपोन टू द फ्यूचर इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो राइट, इसमें जो बायर होता है, ही बिकम्स डेटर, ही हैज टू पे द मनी, ही इज अ डेटर, एंड जो सेलर होता है, he becomes creditor. So always remember, credit transactions results in debtor creditor relation. Seller to whom you have to make the payment, your seller to whom you have to make the payment is your creditor, and your debtor to from whom you have to receive the money is your buyer from whom you have to receive the money is your debtor. So सेलर्स बन जाते हैं क्रेडिटर, बायर्स बन जाते हैं डेटर. लाइक ए sold goods to B on credit. Later on, B sold goods to C on credit. So between A and B, A is a seller, B is a buyer. Between A and B, and their transaction is a credit transaction. Therefore, A will become creditor of B, and B will become debtor of A. A is a creditor of B because B has to make the payment to A. So A is a creditor in that transaction. B is a debtor of A because B has to pay to A, or A has to recover from the B. Later on, B sells these goods to C. So between B and C, B is a seller,
C is a buyer, and this is a credit transaction. So B will become creditor of C. B will become creditor of C, and B will become creditor of C, and C will become debtor. C will become debtor of, C is a debtor of B. So always remember, so B with respect to A is a debtor because he's a buyer in that transaction. B with respect to C is a creditor because he's a seller in this transaction. So buyer is a debtor, seller is a creditor. So हर transaction में buyer and seller change होंगे, and therefore debtor and creditor relationship भी change हो जाएगी. A and B में A seller है, B buyer है, तो A बन गया creditor, B बन गया debtor. वही अगर B and C में देखते हो, B is a seller, C is a buyer, B बन जाएगा creditor, C बन जाएगा debtor. So this you should understand. This is very basic thing. So क्या क्या देखा? What do you mean by transaction? फिर there are two types of transaction: cash transaction and credit transaction. Credit transactions में the relation of debtor and creditor comes into picture. ठीक है? Debtor is from whom you have to receive the money. From whom? Money to be received. Money to be received. Creditor is to whom? Money to be paid. ठीक है? So वही हमने देखा था. देखो क्या क्या देखा था एक बार. Business entity concept. Owner and business are separate. Owner and business are separate. Then we understood what do you mean by transactions. Dealing between the minimum two persons involving exchange of goods and services for money. Right? Only those events which involves money are the transactions. क्या? Only those events which involves money are called as transactions. Then फिर देखा types of transactions. Cash transaction and credit transaction. उधारी के ट्रांज, रोक एंड उधारी. देन मैंने बोला क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सेलर बिकम्स क्रेडिटर, बायर बिकम्स डेटर. और हमने उस दिन एग्जांपल लेके समझ लिया था कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है. देन आगे ठीक है. नेक्स्ट फिर हमने गुड्स देखे. व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स आर द थिंग्स इन विच यू डू द बिजनेस. दे आर द थिंग्स इन विच यू डू द बिजनेस. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, प्रगति बुक डेपो के लिए बुक्स, लैपटॉप शॉपिंग के लिए लैपटॉप्स, मोबाइल शॉपिंग के लिए मोबाइल्स, मेडिकल शॉपिंग के लिए मेडिसिन, मारुति उद्योग लिमिटेड के लिए व्हीकल्स, स्पोर्ट्स शक्ति स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, विजय सेल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. देन बिल्डर के लिए फ्लैट, द फ्लैट्स व्हिच ही हैज कंस्ट्रक्टेड, फर्नीचर मार्ट के लिए फर्नीचर. सो यू कैन टेक एनी एग्जांपल, दे आर द गुड्स. ठीक है. गुड्स आर रिकॉर्डेड थ्रू, मैंने फिर बोला, purchases account and sales account. Goods are recorded through purchases account and sales account. Purchase account is expense, sales account is income. Then फिर हमने देखा what do you mean by assets? Assets are the things owned by the business or rights owned by the business. फिर मैंने उस दिन समझाते समझाते बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, computers and printers, vehicles, furniture and fixtures, they are the assets because they are purchased and will be used in the business for long period of time. You purchase them and you use them for more than 1 year. Land, building, plant and machinery, computers, vehicles, and your furniture and fixtures. These are fixed assets. They are called as which asset? Fixed asset. So they are called as fixed asset. They are your fixed asset. Fixed assets are those assets which will be used for more than 1 year.
more than 12 months. ठीक है, they are called as fixed asset. They are tangible fixed asset because we can touch them, we can see them, therefore they are called as tangible fixed asset. Then उसके बाद goodwill, reputation of the business in the market, right? Then patents, copyright, trademarks, these are intangible assets. These are intangible fixed assets. Again, goodwill will help you not for one day. Goodwill will help you for more than 1 year. Patents, copyright, trademarks. मैंने बोला था कोविड-19 की जब लस आएगी, राइट, जब उसका वैक्सीन आएगा, सो जिस कंपनी को वैक्सीन मिलेगा, दे विल हैव पेटेंट for some years or not 2 years, so that they can, or maybe more years, only they will produce it and they will sell it and they will earn more and more profit, more and more income, because government rewards such invention. तो जिसने वो ढूंढा है उसको उससे फायदा होना चाहिए, इसलिए पेटेंट वगैरह होते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट. चेतन भगत राइट बुक्स, he copyrights his books, मतलब no one can take his story, कोई उसकी स्टोरी कर नहीं सकता, only he has a right. Then they are fixed assets, intangible fixed asset. And फिर हमने देखा, right, there are some current assets like investments, cash balance, bank balance, stock or inventory, debtors or any receivable. It's current assets which have life of less than 1 year. So you can say assets, लिख लेना. Assets can get divided into fixed assets and current assets. Fixed assets are the assets which will be used by business for more than a year. Fixed assets are the assets of the business which will be used by business for more than 1 year. Then current assets are the assets current assets are those assets which will be used by the business for less than 1 year. उनकी life less than 1 year होती है. Then आगे, ठीक है, next. Fixed assets can again be divided into two things. Fixed assets can be divided into two things: tangible and intangible. Tangible and intangible. Tangible and intangible. ठीक है? Tangible fixed assets are the asset, right, which have physical substance. Physical substance, जिनको हम touch कर सकते हैं. Physical substance. And intangible fixed assets are the assets which do not have physical substance. Which do not have physical substance. तो इसमें हमने एग्जांपल लिखे थे. I will copy paste those examples. Assets, ये असेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस करने के लिए. अगर असेट नहीं तो बिजनेस कैसे करोगे? Land, building, plant and machinery, computers and printers, vehicles,
Furniture and fixtures, they are the tangible fixed assets. You purchase them so that you can use it for year after years after years after years. ठीक है? Then इसमें आ जाएगा, इंटेंजिबल में आ जाएगा गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स. Intangible. Again, goodwill is there for years after year. Patents is for years after years. Copyrights have right for years after year. They are fixed assets, but intangible in the nature. जिसको हम देख नहीं सकते, खाली feel कर सकते हैं. Then the current asset में आ जाएगा ये सब. लिखो. Make it fast. मैं 2 मिनट हाइड करता हूँ, मतलब वो पूरा चार्ट दिखेगा. लिखो, ठीक से लिखना. So assets are the things which are very important for doing the business. Without asset you cannot do the business. ठीक है? हर इंस्टीट्यूट की असेट होती है. हर इंस्टीट्यूट की कोई भी बिजनेस होता है उसके कोई ना कोई असेट्स डेफिनेटली रहेंगे. हैज टू. ठीक है? देन असेट के बाद आता है लाइबिलिटीज. असेट के बाद आता है लाइबिलिटीज. असेट के बाद आता है लाइबिलिटीज. व्हाट डू यू मीन लाइबिलिटीज? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस. Of business is called as liability. Financial obligation of the business is called as liability. What do you mean by this? Anything payable, that is, anything payable by business is liability of business. Is liability of business. Anything payable by business is a liability of business. Anything you have to pay is your liability. ठीक है? एनीथिंग यू ओन, जिसकी आपके पास ओनरशिप है, वो असेट. एंड जो आपको पे करना है किसी को,
it is your liability. Example, capital is a liability of a business towards whom? Towards owner. Capital is a liability of a business towards owner. Owner has invested money. Owner has invested money into business. जब बिजनेस बंद होगा, बिजनेस हैज टू गिव दैट मनी टू द ओनर. ओनर ने बिजनेस करने के लिए जो पैसा डाला है, वो जब बिजनेस बंद होगा तो उसको रिटर्न करना होगा. सो वो कभी ना कभी रिटर्न करना पड़ेगा. तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लायबिलिटी इज अ कैपिटल. कैपिटल इज अ लायबिलिटी पेएबल टू ओनर. Liability towards owner. Then loan from bank. Loan from bank. Suppose business has taken loan from the bank. लोन लिया है, कैश आई है, एक साइड पे कैश आई है, दूसरे हैंड में इट इज ऑब्लिगेशन टू रीपे. लोन लिया तो चुकाना पड़ेगा, जो भी चुकाना पड़ेगा वो लायबिलिटी होती है. यू आर टेकन द लोन, यू आर रिसीव्ड द मनी, बट यू आर टू रीपे इट टुमारो. कभी ना कभी रीपे करना पड़ेगा. सो लोन टेकन इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स बैंक और लेंडर, जिसने आपको पैसे दिए उसको. क्रेडिटर्स आर लायबिलिटीज. Who are the creditors? वो सेलर्स जिनसे हमने गुड्स परचेस किए क्रेडिट पे, उधारी पे, अभी तक उनको पेमेंट करना बाकी है. दे आर सप्लायर्स. क्रेडिटर्स आर योर सप्लायर्स. उनको भी पे करना है तो वो अपनी लायबिलिटी है. देन आगे सैलरी पेएबल. आपने आपके एम्प्लॉय की 2-3 मंथ से सैलरी नहीं दी, राइट? आपने आपके एम्प्लॉयज को 2-3 मंथ से सैलरी नहीं दी. दे आर वर्किंग फॉर यू, ठीक है? सो अगर आपने उनको सैलरी नहीं दी, दे आर वर्किंग फॉर यू, डे एंड नाइट दे आर वर्किंग फॉर यू, बट यू आर नॉट पेड देम द सैलरी. आप बोलते हो कि नेक्स्ट मंथ में पे करूंगा, अभी अपने पास इतने फंड्स नहीं है. And therefore, try to understand, and therefore that amount payable is a salary payable, it's a liability. Rent payable is a liability. Salary payable is towards employee, rent payable is towards landlord. उसको पे करना होगा, right? Taxes payable, गवर्नमेंट को टैक्स पे करनी बाकी है. It is a liability. So liability is, try to understand, is obligation towards someone. हमें वो रीपे करना पड़ेगा, ठीक है? So if you don't repay, the liability will continue. If you repay, the liability will discontinue. पे करना पड़ेगा. So capital is a liability towards owner. Loan is a liability towards bank. Creditors are the liability towards suppliers, जिनसे हमने goods credit पे purchase किया. Salary payable, rent payable, right? Then creditors कैसे आया? अरे भाई, हमने उन सपोज ए ने बी से गुड्स लिए, 1 लाख के गुड्स लिए. A is a buyer, B is a seller. गुड्स लिए बट पेमेंट नहीं किया. पेमेंट नहीं किया, क्यों नहीं किया? बोले क्रेडिट पे, बाद में पे करूंगा. सो ही परचेस he purchased goods on today, that is 23rd September. A purchased goods from B on 23rd September 2020 of rupees 1 lakh, and he agrees to pay on 30th September. वो बोलता है मैं मंथ के एंड में पे करूंगा. So during this period A is a debtor and B is a creditor. So A के लिए B is a creditor ना, A B को क्या बोलेगा? तू मेरा क्रेडिटर है, आई एम सपोज टू पे यू रुपीज 1 लाख. गुड्स तो लिए है, बट पेमेंट करना अभी बाकी है.
कब पेमेंट करना है? 30th सितंबर. सो टुडे ए का क्रेडिटर कौन है? बी. ए का क्रेडिटर कौन है? बी. सो ए के लिए बी क्या हो गई? लाइबिलिटी. फॉर ए ही हैज टू पे ₹1 लाख टू बी ऑन 30th सितंबर. ये डिसाइडेड है कि 30th सितंबर पे ए को बी, ए इज सपोज टू पे 1 लाख टू बी. सो ए के लिए बी लाइबिलिटी है एंड बी के लिए ए असेट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए के लिए बी लाइबिलिटी है, ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर ए B is a liability, creditor is a liability, and for B A is asset. पैसे आने हैं ना, any receivable is asset. A is asset. A के लिए B liability है, B के लिए A asset है, ठीक है. आगे. So these are liabilities. Any payable is a liability. You don't pay anything और बाद में पे करना पड़ेगा, उसके वजह से liability बनेगी, ठीक है. So any payable is a liability, any receivable is asset. Any receivable is asset. Asset के इसमें चाहिए तो लिख लेना. Any receivable is asset. Any receivables by business is asset. Any receivable by business is, right, asset. Any payable by business is liability. ठीक है. आगे नेक्स्ट, ये है लाइबिलिटीज. सो लाइबिलिटीज क्यों होते हैं? बिकॉज आप पे नहीं करते. आपको सर्विस मिली है, एम्प्लॉय ने काम किया है बट आपने पेड नहीं किया है. आपने रेंट, आपने ऑफिस रेंट पे लिया है, आप यूज भी कर रहे हो बट रेंट पे नहीं किया है. आप बोलते हो बाद में पे करूंगा, अभी नहीं, फिलहाल नहीं, तो लाइबिलिटी बन गई. देन capital itself is a liability. Capital itself is a liability. Then ये समझना इंपॉर्टेंट है. एक एस्पेक्ट होता है असेट्स, एक एस्पेक्ट होता है एसेट्स, राइट. असेट्स आर डिवाइडेड इनटू करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट. अब फिक्स असेट्स को नॉन करंट असेट भी लोग बोलते हैं. नॉन करंट असेट्स, other name of the fixed asset is non-current asset and दूसरा current asset. Similarly, liabilities can be divided into two parts. Long-term liabilities and short-term liabilities. Long-term liabilities and short-term liabilities. Second is short-term liabilities. दूसरा नाम लिखता हूं मैं उनका. Long-term liabilities are called as non-current liability. जैसे नॉन करंट असेट्स है वैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज. मोर देन 1 ईयर जो रहेगा वो नॉन करंट रहता है. Assets which will be used for more than 1 year is a fixed assets or non-current assets. वैसे liabilities which will be paid after 1 year, liabilities which are to be payable, which are to be payable, liabilities which are to be payable after 1 year. After 1 year is long term liability. Long term मतलब 1 साल से ज्यादा, 12 मंथ से ज्यादा अगर टाइम है पेमेंट के लिए तो उसको लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लाइबिलिटी बोलो. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या दूसरा नाम है करंट लाइबिलिटीज. They are the liabilities which are to be paid within 12 months. तुरंत पे करना होता है. Liabilities which are to be payable within 1 year.
विद इन 1 ईयर, एक साल के भीतर जो पे करना है। एग्जाम्पल, आज आपने लाइबिलिटी इंकर की, सपोज एग्जाम्पल ध्यान देना, हमने गुड्स परचेस किए आज 23 सितंबर को, हमने गुड्स परचेस किए आज और हमें उसको तुरंत पे करना है, 30 सितंबर पे रीपे करना है। हमने गुड्स परचेस की 1 लाख के क्रेडिट पे, तो हमें 1 लाख देने हैं हमें, तो हमारी लाइबिलिटी हो गई। बट कितने दिन में देना है? लेस देन 1 ईयर में देना है, सो इट इज अ करंट लाइबिलिटी। बट अगर वही हमें 1 साल के बाद पे करना होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी। देन एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आता है कैपिटल। कैपिटल कब रिपे करना होता है? ओनर हमें पैसे देता है बिजनेस करने के लिए, उसको कब रिपे करना होता है? जब बिजनेस बंद होगा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब भी बिजनेस बंद होगा तब हम उसको रिटर्न करेंगे। मतलब दैट लाइबिलिटी इज फॉर मोर देन 1 ईयर, सो उसको कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। लोन्स फ्रॉम बैंक और टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, आपने लोन लिया बैंक से एक मशीन परचेस करने के लिए और वो 5 साल के बाद लोन रिपे करना है। 5 साल का लोन है। कितने साल का लोन है? 5 साल का। So, आपको रिपे कब करना है? एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। सो इट दैट लोन इज अ लाइबिलिटी, रिपे करना पड़ेगा, इसलिए वो लाइबिलिटी है। कभी ना कभी तो रिपे करना है ना, वो लाइबिलिटी है। एंड दैट लाइबिलिटी इज टू बी पेड आफ्टर 12 months, देयरफॉर इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, यहां पे लिख लेना शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज में लिखोगे द लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर, liabilities to be paid within 1 year. Example, all these things are to be paid within 1 year. कोई क्रेडिटर्स आपने गुड्स परचेस किए, कोई रुकेगा 12 मंथ से ज्यादा कि मैं आज परचेस करता हूँ 1 साल के बाद पे करूंगा? कोई रुकेगा क्या? नहीं। वो बोलेगा ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ के भीतर पे कर भाई, 2 मंथ 3 मंथ, उससे ज्यादा नहीं। सो क्रेडिटर्स आर टू बी रीपेड विद इन 12 months, दे आर फॉर करंट। सैलरी पेबल, कोई रुकेगा 12 मंथ विदाउट सैलरी? नो। सो सैलरी चलो 1 मंथ की नेक्स्ट मंथ में देंगे, नेक्स्ट मंथ की उसके नेक्स्ट मंथ में देंगे, 1 मंथ डिले, 2 मंथ डिले चलेगा, 12 मंथ डिले नहीं होता है सैलरी। सो सैलरी इज राइट टू बी पेड विद इन 12 months, देयर फॉर करंट लाइबिलिटी। रेंट, टैक्सेस, ये सब चीजें यू हैव टू पे इंस्टेंटली, जितने जल्दी होगा उतने जल्दी आपको क्या करना होता है? पे करना होता है, रीपे करना होता है, एंड देयर फॉर दे आर योर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, दे आर योर करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट लिख लो, ये लिखो लिखो जल्दी करो।
चलो करो कंप्लीट जल्दी। सो जैसे असेट्स दो 12 मंथ से ज्यादा यूज करने वाले हैं तो उनको नॉन करंट या फिक्स असेट बोलो। वैसे लाइबिलिटी जो 12 मंथ के बाद पे करने हैं उनको लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलो, राइट। बाकी करंट रहेंगे। हमें अब भी बाइफर्केशन की जरूरत नहीं, टू बी वेरी फाइन। अभी हमें इतना भी समझ में आ गया व्हाट डू मीन बाय एसेट एंड व्हाट डू मीन बाय लायबिलिटी इज मोर देन इनफ। इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। उसमें मत उलझ के रहो कि व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज करंट। ये अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, सो डोंट वरी। बट राइट, पहले ट्राई टू बाइफर्केट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एग्जांपल, यू परचेस कार बाय टेकिंग ए लोन। सो जब कार है, कार मिलेगी आपको, इट इज अ फिक्स एसेट। एंड कार फ्री में नहीं आई है, उसके लिए लोन लिया है जो हमें पे करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा नेक्स्ट 5 years 10 years डाउन द लाइन। सो दैट लोन इज अ लाइबिलिटी। सो हमें असेट मिली और एक लाइबिलिटी मिली। असेट इंक्रीज हो गई और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, इक्वेशन टैली हो जाएगा। मैंने 10 लाख की कार ले ली, एग्जाम्पल 10 लाख का लोन लेके 10 लाख की कार ले ली। असेट इंक्रीज बाय 10 lakhs, लोन लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज बाय 10 lakhs, टैली हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लोन इज ए लाइबिलिटी एंड असेट, कार इज ए असेट। असेट इंक्रीज हो गई, कार इंक्रीज हो गई, डेबिट। लोन लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिट। ऐसे आपको धीरे धीरे सोचना है। 10, मैं उस पर आऊंगा डेबिट एंड क्रेडिट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन आपने फ्लैट ले लिया, 100 lakhs का फ्लैट ले लिया। आपने 100 lakhs का फ्लैट ले लिया, ध्यान देना सिंपल है। इसके लिए आपने आपके जेब में से 20 lakhs डाले, कैश आपने दे दी, ठीक है। आपने कैश दे दी। आगे कौन सा नहीं समझा? प्लीज रिपीट अगेन, व्हाट इज टू बी रिपीटेड। मतलब वो मुझे क्लिक होगा, मैं वो रिपीट करूंगा। चलो ये एग्जांपल देखो। चलो क्या हो गया, आपने 100 lakhs की कार ले ली, फ्लैट ले लिया, और आपने उसके लिए 20 lakhs की कैश दे दी। तो आपको लोन कितने का चाहिए? 80 lakhs का लोन। तो आपको फ्लैट मिलेगा, 100 lakhs का फ्लैट मिलेगा। फ्लैट इज असेट, 100 lakhs का फ्लैट मिलेगा। फ्लैट इज असेट, राइट। वो इंक्रीज हो गया, फ्लैट फ्लैट आ गया आपके पास। बट आपको 20 lakhs की कैश देनी पड़ी। कैश इज असेट, डिक्रीज हो गई। सो असेट, नेट असेट इंक्रीज इज 80 lakhs। आपने 100 lakhs का फ्लैट लिया, उसके लिए 20 lakhs कैश दे दी। सो फ्लैट इज असेट, कैश इज असेट, बट फ्लैट इंक्रीज एंड कैश डिक्रीज। एंड रिमेनिंग 80 lakhs कैसे पेड किए? बाय टेकिंग द लोन, राइट। बैंक ने हमारे लिए बिल्डर को पेड कर दिया। बैंक ने डायरेक्टली बिल्डर को 80 lakhs दिए, बाद में हम बैंक को 80 lakhs देते रहेंगे इन इंस्टॉलमेंट्स, ईएमआईज। सो लोन, मैंने लोन लिया है, लोन 80 lakhs का लोन लिया, माय लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 80 lakhs की। सो जब मुझे फ्लैट आ गया, उसके साथ मुझे लोन भी लेना पड़ा, तो दैट लोन टू बी रिपेड इज अ लाइबिलिटी, फ्लैट इज असेट, ठीक है। तो इसे धीरे धीरे समझना है। देन नेक्स्ट, owner has invested 10 lakhs rupees into business. Owner has invested 10 lakhs rupees into business. This 10 lakhs is to be given back when you close the business. So 10 lakhs is to be paid. Capital is to be repaid on one day. आज या कल कभी ना कभी रिपे करना पड़ेगा. So that is a liability. Loan taken from bank, रिपे करना पड़ेगा, liability. Salary payable, पे करनी पड़ेगी. ऐसे आप नहीं रह सकते, आपको देनी पड़ेगी, liability. टैक्सेस पेबल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्सेस पेबल है, पेड अभी तक किए नहीं, राइट। टैक्सेस पेबल इज, एनी पेबल इज अ लायबिलिटी। इन शॉर्ट, एनी पेबल इज लायबिलिटी। आपने मोबाइल ले लिया 1 लाख का, और उसके लिए आपने आपके जेब में से 10,000 दिए।
So mobile received is asset. Mobile is asset. क्यों? Because it will be used for more than 1 year. It is asset basically. We can use mobile for many purposes. So mobile is asset. उसका यूज बहुत सारे हैं और उसके लिए आपने 10,000 की कैश दे दी. मोबाइल असेट है, कैश इज ऑल्सो असेट. रिमेनिंग 90,000 का आपने लोन ले लिया. लोन इंक्रीज हो गया, लोन लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई. देखो, मोबाइल इज असेट एंड लोन इज ए लाइबिलिटी. रिपे करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे आपको सोचना है. देन लेट मी चेक. ठीक है, देन आगे. एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिख लेना. मैं अभी असेट एक लाइबिलिटी सिखाया है तो वो बोलता हूं. फॉर असेट्स एंड लाइबिलिटीज, assets assets if they increase, if asset increase हम उसको डेबिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेबिट. इफ असेट डिक्रीज होगी तो हम अकाउंट्स में उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट. कोई भी असेट इंक्रीज होगी, कोई भी असेट इंक्रीज होगी हम उसको डेबिट बोलेंगे. असेट डेबिट हो गई बोलेंगे. असेट डेबिट मतलब इंक्रीज हो गई. अगर कोई असेट डिक्रीज होगी, प्लांट एंड मशीनरी आपने सेल कर दी, कंप्यूटर सेल कर दिया, फर्नीचर सेल कर दिया, कैश आपने किसी को दे दी, बैंक से बैलेंस कम कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया, इन सब की वजह से असेट डिक्रीज हो रही है. जब असेट डिक्रीज होगी, बिकॉज आपके पास फर्नीचर तो आपने सेल कर दिया तो फर्नीचर चला गया आपसे. आपके पास लैंड थी, आपने सेल कर दी, लैंड चली गई आपसे, डिक्रीज हो गई. तो अगर ऐसे होता है तो हम उसको क्रेडिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्रेडिट. डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिट, increase in asset is debit, decrease in asset is credit. Similarly for liabilities they are opposite of assets. If liability increases हम उसको क्रेडिट बोलते हैं. कैपिटल इंक्रीज हुआ, लोन इंक्रीज हुआ, सैलरी पेएबल इंक्रीज हो गई, रेंट पेएबल इंक्रीज हो गया, टैक्सेस पेएबल इंक्रीज हो रहे, आप पे ही नहीं कर रहे हो इसलिए लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है. आप पे करोगे तो लाइबिलिटी कम होगी, बट अगर आप पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी विल कीप ऑन माउंटिंग. अगर आपने लोन लिया है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट अगर आप लोन रिपे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज ही होगी ना, कम थोड़ी होगी. लाइबिलिटी रिपे करने से कम होती है, लाइबिलिटीज पेमेंट करने के बाद कम होती है. सो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट बोलते हैं, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं डेबिट. लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट. दीज आर द रूल्स ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज. सो अभी तक हमने असेट्स एंड लाइबिलिटीज समझे. ठीक है, क्या समझा हमने आज? असेट्स एंड लाइबिलिटीज थोड़ा पहले का रिवाइज किया. एंड वी अंडरस्टूड कैपिटल एंड ड्राइंग्स. कैपिटल ये होता है जो ओनर बिजनेस को देता है वो कैपिटल, एंड ओनर बिजनेस से जो उठाएगा, राइट, उसको बोला जाता है ड्राइंग्स. पर्सनल यूज के लिए जो जो लेगा वो बिजनेस से, उसको ड्राइंग्स बोला जाएगा. कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर अपोजिट. ओनर ने बिजनेस में पैसे डालने को कैपिटल बोलते हैं, एंड ओनर ने बिजनेस से पैसे खुद के यूज के लिए निकालने को ड्राइंग्स बोलते हैं. असेट का डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है? जब जब असेट इंक्रीज होगी, इक्वेशन है असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. जब जब असेट इंक्रीज होगी हम उसको डेबिट बोलेंगे, जो असेट इंक्रीज होगी उसको डेबिट बोलेंगे, एंड जो असेट डिक्रीज होगी उसको क्रेडिट बोलेंगे. जो भी लाइबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी उसको क्रेडिट बोलेंगे, एंड जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी हम उसको डेबिट बोलेंगे. दिस इज अ रूल गिवन बाय
right? This is given by the right Lucasa di Pacioli, that is a inventor of double entry system. उसने rules दिए कि increase in asset debit, decrease in asset credit, increase in liability credit, decrease in liability debit. So कल मैं एक lecture लूंगा. I will be taking one lecture. It will be in the morning only, 9 to 10, right? Basic ले लूंगा. In that we will discuss two things: what is incomes and what is expenses. What is the incomes and what is expenses, and then we will decide the rules of income and expenses, that is debit rule and credit rule of incomes and expenses. ठीक है, ऐसे हम एक एक घंटे करेंगे ना, तो अपना धीरे धीरे हम लाइन पे आ जाएंगे. ठीक है, किसी के डाउट है आज के डिस्कशन के, या पहले कोई डिस्कशन जो समझा नहीं, राइट? आई हैव शेयर्ड सम ऑफ द वीडियोस जो मैंने पहले लिए ना, वो भी देखो. मैं आपको बोल रहा हूँ, आई विल बी कवरिंग एट द सेम टाइम. वो भी देखो. देखो यूट्यूब पे एक एक घंटे के लेक्चर्स होते हैं. आप थोड़ा उसको चाहिए तो स्पीड बढ़ा के करो, 1.5 पे देखो. और योर टाइम, अब भी टाइम है, बाद में नहीं है. सो कीप ऑन रिवाइजिंग दोस थिंग्स. यू फाइंड सम डिफिकल्टी, यू कैन कॉल मी. मैंने आपको बोला है दोपहर में मुझे फोन कर सकते हो. इवनिंग 8:30 के बाद आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हो. आई डू अटेंड द कॉल्स, बट आपने करना चाहिए तब मैं कॉल अटेंड करूंगा. ठीक है? सो एंड जो होमवर्क देते हैं ना, लेट इट बी रॉन्ग, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, आप ट्राई करते रहो, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है? ठीक है, चलो 4:15 हुए, सो वी कैन इन टुडेस सेशन. कल हम 9 बजे ले लेंगे. ठीक है, 9 से 10 ले लेंगे, और फिर मेरा ही 10 बजे लेक्चर है ना. हाँ, कल मेरा ही है. सो वी विल कंटिन्यू देयर आफ्टर. नहीं नहीं, मेरा ही 9 to 10 है ना. मेरा 9 to 10 है. मेरा नॉर्मल लेक्चर 9 to 10 है. ओके, मैं चेक करता हूँ कैसे स्लॉट अवेलेबल है, मैं वैसे ले लूंगा. ठीक है, थैंक यू. लेकिन पढ़ो, अगर कोई डाउट है ना, डू पिंग मी एवरीवन. ठीक है, डू पिंग मी. ठीक है, थैंक यू.